بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کی ٹیچر راحیلہ یوسف، لیکچرر اردو، فضائیہ ڈگری کالج رفیق، اور محترم اساتذہ کرام، آپ کے سامنے میں ملی نغمہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے کہ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والے جو کمنٹس ہیں اور بھرپور آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں، انہی نے مجھے ہمت دی ہے، ہمت عطا کی ہے کہ میں یہ لیکچرز آپ لوگوں تک پہنچاتی رہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ یہ علم کی دولت جو ہے وہ جتنی پھیلا سکوں وہ پھیلتی رہے، اور جس چیز تک یہ روشنی پہنچتی رہے، دیے سے دیا چلتا رہے۔ اور یہ نظم جو ہے، اس کا لیکچر نمبر 1 جو تھا، اس میں آپ احمد ندیم قاسمی کا تعارف اور شعر نمبر 1 کر چکے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 جو تھا، اس پہ آپ شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریح آپ لوگوں نے دیکھی، جس کے نوٹس آپ لوگوں کو تفسیر ادب میں میسر ہوں گے۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعر نمبر 4 کی تشریح کی بات کریں گے آج ہم۔ گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ گھنی گٹائیں، کالی گٹائیں، گہرے بادل محال نہ ہو، مشکل۔ رویدگی ہوتا ہے نمو پانے کی طاقت۔ اس شعر میں بھی احمد ندیم قاسمی دعائیہ انداز میں ملک کی ترقی کے لیے آرزومند ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ میرے ملک میں اللہ تعالیٰ ایسی بارشیں برسائے جسے پتھروں سے بھی سبزہ اگنے کا عمل شروع ہو جائے۔ بارشیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام ہوتی ہیں، اس لیے شاعر بارش کی دعا کر کے ملک کے لیے رحمت، کرم، خوشحالی کی دعا کر رہا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے پتھروں سے سبزے کے اگنے کی دعا کی ہے۔ پتھر کی ساکھ سخت ہوتی ہے اور نرم جگہ سے تو سبزہ بآسانی اگاتا ہے، لیکن پتھروں سے سبزے کے اگنے کا عمل مشکل ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں سبزہ اگنے کی جو دعا کی ہے، اس سے مراد یہ ہے بے حس کٹھن مشکل حالات میں بھی بہتری کے راستے کی دعا۔ یعنی حالات چاہے کتنے بھی سخت ہو جائیں، بے حسی کتنی بھی پڑ جائے، کٹھن کیوں نہ ہو جائے، مشکل کیوں نہ آ جائے، لیکن کوئی ایسا رستہ ضرور نکل آئے اور ملک دوبارہ سے ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، مشکلات آسانیوں میں ڈھل جائیں، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ اگر وطن پر کوئی مشکل وقت آئے گا، وطن کسی مصیبت میں پھنس جائے گا، تو وطن میں رہنے والے بھی مسائل کا شکار ہوں گے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وطن سے محبت ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ چرند پرند غز سب مخلوق میں رکھا ہے۔ اگر اہل وطن کے خمیر میں وطن کی محبت رچی بسی ہو تو وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ وطن کی عزت کے امین ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وطن کی سالمیت میں ہی ان کی سالمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، تو کتنا پیارا ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سفر ختم ہونے کے بعد جلدی گھر والوں کی طرف لوٹنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وطن کی محبت وہ جذبہ ہے جو تمام جذبوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ وطن پر فدا ہر انسان ہے کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی بات کرتے ہیں، تشریح کی بات کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ اب نوٹس میں یہ تفسیر ادب سے لے لیجئے گا، اس کا نمبر میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا امتیاز صاحب کا، اور وہاں سے ان سے رابطہ کیجئے گا، وہ آپ کو یہ کتاب فراہم کریں گے۔ خدا کرے کہ نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو۔
वक़ार, इज़्ज़त, मर्तबा और ख़म होता है झुक जाना किसी चीज़ का, और गैर फ़ानी होना, ये आपके यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। तफसीर जो नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है उसमें गैर फ़ानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ख़त्म होने वाला और हुस्न जो है, ये तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है कि हुस्न खूबसूरती को कहा जाता है। तशवीश माहौसाल, तशवीश ख़तरा माहौसाल हर ज़माना। इस शेर में अहमद नदीम कासमी मुल्क के लिए दुआ करते हुए कहते हैं कि ए परवरदिगार, हमारे मुल्क की इज़्ज़त तमाम दुनिया में बनी रहे। मुल्क इखलाकी, समाजी, माशी, माशरती अलमुख्तसर तमाम शोबाह ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ गामज़न रहे। यहाँ के रहने वाले लोग मुल्क से मोहब्बत करें, उनके अज़ाइम बुलंद हों और मुल्क का हर फर्द अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। मुल्क में दयानतदारी, अदल और इंसाफ का बोलबाला हो, नज़्म व ज़ब्त और कानून की पासदारी हो। मुल्क की तरक्की और वक़ार के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की कद्र करें, उसके वसाइल की कदर करें। अगर हर शख्स दूसरे के हक़ को मारने की बजाय दूसरों की मदद करेगा तो वतन का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। जब अवाम, हुकूमत और इदारे मिलकर काम करेंगे तो मुल्क अजीम से अजीम होता चला जाएगा। ये मेरा नहीं तेरा नहीं अपना वतन है, ये मेरा नहीं तेरा नहीं अपना वतन है, ये अपना वतन दुनिया में अनमोल रतन है। मुल्क का वक़ार इस वक्त बहाल रह सकता है जब हम सब मिलकर इसे अजीम बनाने की कोशिश करेंगे कि वतन ही हमारी माँ, हमारी छाँव, हमारा सुकून है। और ये सुकून उस वक्त कायम रह सकता है जब कौम का हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और उसको पूरी दयानतदारी के साथ पूरा करे। हमारे मुल्क की आबादी में नौजवानों की आबादी 35% है। नौजवान किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौजवान मुल्क की किस्मत बदलने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया में बर्पा होने वाले हर इनकलाब, हर तब्दीली के पीछे नौजवानों का किरदार है। लिहाजा अगर नौजवान अपना किरदार अदा करेंगे तो आइंदा आने वाले वक्तों में वतन का वक़ार कभी कम नहीं होगा, क्योंकि जिस मुल्क की बागडोर मजबूत हाथों में होगी उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। ये रश्के चमन अर्ज़े पाक वतन, ये रश्के चमन अर्ज़े पाक वतन, बड़ी मोहतरम है ये खाके वतन। अता है, अनायत है अल्लाह की, कि ये एक रहमत है अल्लाह की। तो उसे में शायद दुआ करता है कि परवरदिगार मेरे वतन के हुस्न को कभी कोई ख़तरा ना हो, ये हुस्न कभी ज़वाल पजीर ना हो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने जोग्राफियाई लिहाज से बहुत सी अनवाओ इकसाम की आबो हवा दी है। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब्ज़ व शादाब इलाके, मैदान, पहाड़, जंगलात, सर्द और गर्म इलाके, खूबसूरत झीलें, जज़ायर सब कुछ है। गोया ये वतन कुदरती खूबसूरती से माला माल है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये वतन दुनिया की खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान में कुदरत की जानिब से अता करदा नेमतों को इस अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए शायद दुआ गो है इसका हुस्न हमेशा कायम रहे, उसके हुस्न को कभी ज़वाल ना हो, कोई ख़तरा ना हो, बल्कि माहो साल उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो। जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़ कर हसीन मेरा वतन है, हम सर है फलक की जो ज़मीन मेरा वतन है। हर एक फर्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, हर एक फर्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। फ़र्द, हर आदमी, हर शख्स तहज़ीब, रहन सहन का तरीका, फ़न, हुनर, औजे कमाल, कमाल की बुलंदियाँ, मलूल ना हो, उदास ना हो, गमगीन ना हो, खस्ता हाल ना हो, ख़राब हालत में ना हो, शिकस्ता हाल ना हो, परेशान ना हो। इस शेर में शायर अल्लाह से दुआ करते हुए कहता है कि ऐ मेरे मालिक, मेरे वतन का हर एक रहने वाला तहज़ीब व फ़न के हवाले से कमाल बुलंदियों पर हो और यहाँ के रहने वालों के पास कभी गम, दुख, परेशानियाँ ना आए। यहाँ तक लफ्ज़ तहज़ीब का ताल्लुक़ है तो तहज़ीब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे मुराद किसी दरख्त या पौधे को काटना, छांटना, तराशना के हैं। फ़ारसी में तहज़ीब से मुराद
आरास्ता पेरास्ता करना और दुरुस्त करने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में ये लफ्ज़ आमतौर पर शाइस्तगी के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे मुराद बातचीत, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने का अंदाज, रहन सहन के तरीके, ज़ुबान, समाजी रिश्ते, इल्म व अदब, फ़लसफ़ा, हिकमत, अकायद, इखलाक, आदात, रस्म व रवाज, ख़ानदानी ताल्लुकात सब शामिल हैं। और अगर इन्हीं मानों को मद्देनज़र रखा जाए तो शायद दुआ गो है कि इस मुल्क के रहने वाले अपने समाजी, माशरती, माशी तौर पर तरीक़ों की वजह से तमाम दुनिया में पहचाने जाएं। अगर तहज़ीब व शाइस्तगी की बात हो तो यहाँ के लोगों की दुनिया में एक मिसाल हो। जब इल्म व अदब की बात हो, हुनर की बात आए तो इल्म व अदब, फ़लसफ़ा, हिकमत में नौजवान सरे फहरिस्त हों। सनत हो या ज़राअत हो, डॉक्टरी का पेशा हो, इंजीनियरिंग का, दुनिया में यहाँ के नौजवानों के लोगों की मिसाल दें। वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि मेरी दुआ है कि यहाँ के लोगों के पास कोई दुख, गम और तकलीफ़ पाकिस्तान में ना आए। यहाँ के लोग सुख की ज़िंदगी गुजारे। और ये उस वक्त मुमकिन है जब यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा, कौम का हर फर्द अपनी जगह ज़िम्मेदारियों को समझेगा, अवाम, हुकूमत, इदारे मिलकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगी। यहाँ के नौजवान अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझेंगे, नौजवानों को हर लिहाज से इनके हकूक़ हासिल होंगे। मुल्क माशी, तालीमी, माशरती गर्ज़ के हर हवाले से तरक्की की राह पर गामज़न होगा। नस्लें नौ कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह देगी तो फिर यकीनन इस मुल्क में अमन व अमान होगा, सुकून होगा, यहाँ के लोग हर हाल में खुशहाल होंगे। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। हकीकत यही है कि जिस कौम को अपनी सलाहियतों पर भरोसा होता है उसके अज़ाइम बुलंद होते हैं, नाकामी को ज़िंदगी में रुकावट नहीं समझते। और जिस वतन के नौजवान बुलंद हौसला, बुलंद हिम्मत होते हैं तो वो कौम तरक्की की मनाज़िल तय करके आला इक़्तिदार के मनसब पर फाइज़ होती है। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमान बनाएंगे। लेकिन अगर इसके बरअक्स मुल्क में मसाइल हों, बेरोज़गारी हो, मुलाज़मतों की अदम दस्तयाबी हो, नाइंसाफ़ी हो, बददियानती हो, दहशतगर्दी हो, बदउनवानी हो, रिश्वत, सिफारिश, लाकानूनियत, बेराह रवी, मंशियात का इस्तेमाल और इसी किस्म के मसाइल का शिकार हो तो लोग मायूसी और बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे मुल्क व कौम की इज़्ज़त व आबरू दुनिया के सामने भी 2 टके की होती है। इसलिए शायर की ये दुआ खुदावंद करीम से है कि मुल्क पर जो है हर वक्त खुशहाली रहे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के मैदान में आगे से आगे बढ़ता चला जाए और इसका हर फर्द खुशहाली और अमन से रहे। वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है, वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा, मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, मज़ीद कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मैं आपके लिए मज़ीद क्या बेहतरी ला सकूं। और इसके सारे नोट्स जो हैं आपको अब तफसीर अदब से मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसका नंबर जो है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दे दिया गया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जब आप वहाँ से लेंगे तो आपको ये नोट्स आसानी से मुहैया होंगे और आपके ही इलाके में हर जगह पे ये मिल जाएंगे आप लोगों को। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। और ये आज हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ है। इसमें हमने मिली नगमा को के तमाम अशार को जो कैंटैब, किताबस्तान और नेशनल बुक फाउंडेशन की तीनों किताबों में जो मेन अशार थे जो मैंने आप लोगों को उनकी तशरीहात करवा दी हैं और ये आप लोगों को सारी की सारी तशरीहात तफसीर अदब से मुयस्सर होंगी। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासिर हो।